Good afternoon, students. So today we are starting with the invertebrates phylum. So let's discuss about Porifera phylum. They are commonly known as sponges. Let's see the classification. So यहाँ पर देखो ये kingdom Animalia को belong करते हैं. We know this thing, right? Then the common name of Porifera are sponges. They share cellular level of organization. They have cellular level of organization. ज़्यादातर हमें मराइन वाटर में मिलते हैं बट कुछ फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिलते हैं. ओके, विल सी दैट. What are the general characteristic of Poriferas? They are asymmetrical body structure. मतलब हम उनकी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, we can't divide the body into two equal half. They are asymmetrical. They are asymmetrical and they are sessile. Means जो सबस्ट्रेटम होता है, नीचे का जो पार्ट होता है समुद्री हिस्सा, उस पे वो अटैच कर जाते हैं एंड वहां से नहीं हिलते. दे डोंट मूव, दे विल बी at one place, and they are multicellular. All member of kingdom Animalia are multicellular. Okay, but primitive animals, they are protozoans. They share cellular level of organization, no tissue, no organ, and some division of labor we can see. And there are numerous pores, ostia, and large pores, osculum. We'll see its functioning in the upcoming slide. And उनके body cavity होती है जिसको spongiocele कहा जाता है. So you see the body structure and skeleton. The body is supported with spicules and spongin fibers. Spicules are made up of calcium carbonate or silica. Spongin fiber are proteinaceous in form. वेरियस द इंटरनल लाइनिंग कैविटी. स्पॉन्जियोसील की जो इंटरनल लाइनिंग है यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स कहते हैं. ओके, that internal lining of cavity. What is the cavity? Spongiocele is the cavity, and they have coinocyte or collar cells. The name. Outer surface, बाहर की surface पे they are covered with pinacocytes. अंदर की तरफ है coinocytes, बाहर की तरफ है pinacocytes. Water canal system होता क्या है? So see here. This is the structure of Porifera. सो यहाँ पर इंटरनल बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जियोसील कह रहे हैं जिसके अंदर हमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं, नथिंग बट कॉलर सेल्स. ओके, एंड दे हैव द पोर्स, ऑस्टिया, जहाँ से पानी इंटर होता है उनकी बॉडी में. इट्स मूव्स टू स्पॉन्जियोसील एंड देन इट मूव्स आउट विद ऑस्क्यूलम. ओके, ऑटर सरफेस के लिए. सो सी, वाटर इंटर हो रहा है ऑस्टिया पोर्स से, मूविंग इनटू द कैनाल्स, then spongiocele and then osculum exit. So water canal system का function क्या है? What is the function of water canal system? फूड को कलेक्ट करना, खाना कलेक्ट करना, रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में, और जो वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना. सो व्हाट आर द फंक्शन? गैदरिंग ऑफ फूड. Okay, what happened all of a sudden? Food gathering and for reproduction also. Movement of gametes we can tell. This is the importance of water canal system. Ostia, then cavities, spongiocele, body cavity, and osculum. अंदर की तरफ है कोइनोसाइट्स. दिस फ्लैजिलेटेड सेल्स आर नथिंग बट कॉलर सेल्स.
और बाहर की तरफ पिनाकोसाइट्स। सो उनकी फिजियोलॉजी देखते हैं हम। वी हैव सीन इट्स जनरल कैरेक्टर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड नो जर्म लेयर्स नहीं है यहाँ पर, हमें देखने को नहीं मिलती। और सीलम यहाँ पर नहीं है, दे आर सिलोमेट बट स्पॉन्जोसिल बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट है। एंड that's what, no metamerism, no notochord. Okay. Physiology, nutrition and digestion. Mode of nutrition. किस तरह से खाना लेते हैं? होलोजोइक, ऑल आर होलोजोइक। हम हेटेरोट्रॉप्स है, किंगडम एनिमालिया। ओके। सो ये किस के ऊपर फीड कर रहे होते हैं? बैक्टीरियाज के ऊपर, प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। एंड कोइनोसाइट्स कॉलर सेल्स है जो कि फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं वाटर से। डाइजेशन इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन, माउथ एंड स्टमक प्रेजेंट नहीं है, दे ऑल आर एब्सेंट। Clear. Now let's see how respiration, excretion and gaseous exchange circulation happens. Respiration body surface से होता है या water flow, okay, through body surface. Gases exchange किन के बीच में हो रहा है? Water and cell के बीच में होता है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, तो जो भी वेस्ट दे आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया, इट मूव्स आउट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। सर्कुलेशन के लिए अगेन नो सर्कुलेटरी सिस्टम, सो वाटर इज ओनली द mode of transport, basically a transport medium. Next, reproduction. They reproduce by both the methods, asexual and sexual. Through asexual reproduction happens by fragmentation and by budding or gametes. In freshwater sponges, we can observe fragmentation or gametes. Sexual reproduction through, basically they are hermaphrodites. Both the individuals are present in the same organism, so both egg and sperm produced by the same individual. फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस होकर अडल्ट फॉर्म होगा। फ्री स्विमिंग लार्वा हमें देखने को मिलता है। सो यू सी द एग्जांपल्स, साइकॉन है, साइंटिफिक नेम साइकॉन साइफा। फ्रेश वाटर, बेसिकली ये मराइन वाटर में ज़्यादा मिलते हैं, बट फ्रेश वाटर में भी कुछ दिखाई देते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला। देन वी हैव बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया। क्लियर? दिस आर द एग्जांपल्स। सो सी हियर, साइकॉन, फ्रेश वाटर एंड बाथ स्पॉन्ज। ओके, यहाँ पर देख लो एग्जांपल्स। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम पोरीफेरा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक क्विक रिकैप देती हूँ। एसिमेट्रिकल बॉडी है, सिसाइल है, अपनी जगह से मूव नहीं करते, प्रीमिटिव है बट मल्टी सेलुलर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी बॉडी पे न्यूमरस पोर होते हैं जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। जो लार्ज एक सिंगल ओपनिंग हमें दिखाई दे रही है वो ऑस्क्यूलम है। बॉडी कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। नेक्स्ट, उनकी बॉडी पे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि उनका स्ट्रक्चरल स्केलेटन बना रहे हैं। जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से बने हुए हैं। स्पॉन्जिंग फाइबर प्रोटीनिशियस है। इनकी इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है बॉडी में, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। और स्पॉन्जोसील के अंदर हमें लाइनिंग पे कॉलर सेल्स, कॉइनोसाइट्स देखने को मिलते हैं। बाहर की तरफ हमें पिनाकोसाइट्स देखने को मिलेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्जेस पोरीफेरास में। सो जो स्मॉल ओपनिंग से ऑस्टिया, वहां से वाटर इंटर होगा, इट मूव्स टू स्पॉन्जोसील एंड देन एग्जिट होता ऑस्क्यूलम्स, लार्ज ओपनिंग। सो वाटर कैनाल सिस्टम किस लिए हेल्प कर रहा है? फूड को गैदर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, and that's happening by diffusion. Okay, here you can see the diagram. उनकी फिजियोलॉजी देखते हैं। डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, ऑल आर होलोजोइक, किंगडम एनिमालिया के मेंबर्स, तो वो होलोजोइक है। बैक्टीरिया और प्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। कोइनोसाइट्स जो सेल है वो खाने को ट्रैप करते हैं वाटर से। और डाइजेशन अंदर ही हो रहा है बॉडी के, इंट्रासेलुलर है। कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन, माउथ एंड स्टमक प्रेजेंट नहीं है। एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है? रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से वाटर फ्लो से होता है। एक्सक्रीशन डिफ्यूजन से होता है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है इनका। सर्कुलेशन को स्पेशलाइज्ड हार्ट,
प्रेजेंट नहीं है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर ही इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम है। रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन एंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला वी कैन ऑब्जर्व बर्डिंग। Sexual reproduction is to hermaphrodite. Both individuals are present in the same organism. Male and female दोनों एक ही organism, एक ही body में है. Okay. So here both egg and sperm produced by same individual, internal fertilization, indirect development with larval stage. Larval stages are show free swimming larva. Example are Saifa, freshwater sponges and bath sponge. Okay, so I hope so you all liked it, students. Keep liking, keep sharing, and do subscribe to my channel. I'll be coming up with the next phylum in the upcoming video. Bye bye, take care, have a great day ahead.